تلنگانہ میں الیکشن کے موقع پر سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اپنی اپنی پارٹیوں کے امیدواروں کے لیے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ضمن میں BRS پارٹی نے بھی جلسے عام کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر گزشتہ کل مہیشورم کے حلقے میرپیٹ میں ہونے والے انتخابی جلسے میں BRS پارٹی کو چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ اس وقت رات کے جلسے میں رات صرف گلابی نظر آ رہی تھی۔ انتخابی جلسے میں مہمان خصوصی سبیتا ریڈی، چیوڑلہ MP رنجیت ریڈی، یوتھ لیڈر کارتک ریڈی، کرشنا ریڈی، کوشک ریڈی، یوسف پٹیل و دیگر لیڈرز بھی موجود تھے۔ جلسے میں تلنگانہ کا روایتی رقص بھی کیا گیا۔ اس موقع پر جلسے میں عوام میں ایک امید نظر آئی، پھر دوبارہ ریاست میں برسر اقتدار پارٹی BRS ہی مقبول ہوگی اور BRS کو ہی عوام اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ تلنگانہ میں BRS کی اسکیموں سے فوائد حاصل کرنے والی عوام KCR کی کار کو بہت تیزی کے ساتھ تلنگانہ کے الوال و دیگر ریاستوں میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ مہیشورم کے حلقے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر عوام سے ووٹ دینے کی سبیتا ریڈی جلسے میں موجود تمام لیڈرز اور عوام سے اپیل کی ہیں۔ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి ఆలోచిద్దాం. కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పడం కాదు. 9.5 సంవత్సరాలలో 2014 కన్నా ముందు మన దగ్గర ఏముండే, ఇప్పుడు ఏముందని మీరు ఆలోచిస్తే ఒకటి ఆలోచిస్తే వాస్తవాలన్నీ మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాయి. అది 24 గంటల కరెంటు కావచ్చు, పిల్లలకు ఉపాధి కావచ్చు, ఈరోజు ఎక్కడ చూసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావచ్చు. హైదరాబాద్కి ఎవరు వచ్చినా ఇది హైదరాబాద్ న్యూయార్క్ అంటున్నారంటే ఈ రాష్ట్రంలో میری آخری سانس تک تلنگانہ میں امن و امان برقرار رکھتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دوں گا۔ تلنگانہ کی عوام انتخابات میں دانش مندی کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا صحیح امیدوار کے حق میں استعمال کریں۔ تلنگانہ کی ترقی کے لیے BRS امیدواروں کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ کھمم و کوتاگوڑم میں منعقدہ BRS کے پرجا آشیرواد جلسوں سے تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کا خطاب۔ بھدرادری کوتاگوڑم میں منعقدہ پرجا آشیرواد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کی سرزمین قدرتی وسائل سے لیس ہے، یہاں پر کالا سونا نکلتا ہے۔ KCR نے کہا کہ 134 سالوں سے یہ علاقے میں کوئلے کے کانے موجود ہیں۔ متحدہ آندھرا پردیش میں اس علاقوں کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ KCR نے کہا کہ حصول تلنگانہ کے بعد BRS کے دور حکومت میں بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کو جنگی خطوط پر ترقی دی۔ چیف منسٹر KCR نے جلسے میں موجود عوام کو مشورہ دیا کہ گھر جانے کے بعد آپ خود مشورہ کر کے صحیح پارٹی اور صحیح امیدوار کے حق میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ آج تلنگانہ میں پچھلے 9.5 سالوں میں ہر گھر کو پانی اور بلا کٹوتی برقی سربراہ کر کے پچھلے حکومتوں نے 50 سالوں میں وہ کارنامہ انجام نہیں دیا جو BRS پارٹی نے عملی طور پر کر دکھایا اور حکومت کی اسکیمات کو عوام کی دہلیز تک پہنچایا۔ چیف منسٹر KCR نے BRS کے امیدوار وہ وینکٹیشور راؤ کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ بارزاں چیف منسٹر KCR نے کوتاگوڑم سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھمم پہنچے۔ کھمم کے SR&BGNR کالونی کالج گراؤنڈ میں منعقدہ پرجا آشیرواد جلسے سے چیف منسٹر KCR نے خطاب کیا۔ چیف منسٹر کے خطاب سے قبل کھمم اسمبلی حلقے کے BRS پارٹی کے امیدوار P اجے کمار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں کھمم کی سرزمین پر پیدا ہوا ہوں اور میں کھمم شہر کا بیٹا ہوں۔ پچھلے 10 سال سے میں کھمم کا MLA ہوں اور 4 سال سے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ کی حیثیت سے 24 گھنٹے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہو کر پچھلے 5 سالوں میں کھمم شہر کی ہر شعبے میں جنگی خطوط پر ترقی ہوئی ہے، جس کو کھمم شہر کی عوام کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ P اجے کمار نے کھمم شہر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ انتخابات میں بھاری اکثریت کے ساتھ مجھے کامیاب بنائیں۔ P اجے کمار نے چیف منسٹر KCR کو جلسے عام سے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ چیف منسٹر KCR نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں آخری دم تک تلنگانہ میں امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کو بام عروج پر پہنچانے کا عہد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک آزاد ہو کر 75 سال گزرنے کے باوجود ملک کے سیاسی جماعتوں اور ملک کے حکمرانوں نے عوام کی ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے، جو ملک کے عوام کے لیے افسوس کی بات ہے۔ چیف منسٹر KCR نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جمہوری ملک میں ووٹ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھمم ضلع میں بہترین سڑکیں، کھمم ضلع کے سڑکوں کی توسیع، IT ہب کا قیام،
हाई टेक आरटीसी बस स्टैंड, मिनी टैंक बंड के अलावा हजारों करोड़ों का काम पी अजय कुमार की निगरानी में शहर खम्मम की तरक्की हैदराबाद के तर्ज पर हुई। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 सालों में सिर्फ वोटों की सियासत की, मगर बीआरएस के दौरे हुकूमत में कम मुद्दत में हर शोबे में शानदार तरक्की की। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल दौरे हुकूमत में अक़लियतों के लिए सिर्फ 900 करोड़ बजट मंजूर किया था। बीआरएस के दौरे हुकूमत में 9 सालों में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। केसीआर ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना दुश्मन पार्टियां करार दिया। तहरीक तेलंगाना के वक्त कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने तेलंगाना तहरीक को खत्म करने की नापाक कोशिश की। केसीआर ने उर्दू में कहा कि हमारी नीयत साफ थी, साफ नीयत से काम करने वालों को कामयाबी मिलती है। चीफ मिनिस्टर केसीआर पी अजय कुमार को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस मौके पर खम्मम रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव रुकन राज्यसभा वो राजू रवि चंद्रा सत्तुपल्ली रुकन असेंबली, वीरिया पालेरू रुकन असेंबली के उपेंद्र रेड्डी रुकन कानून साज कौंसिल वो सदर बीआरएस पार्टी ताता मधु, खम्मम बल्दिया कॉर्पोरेशन मेयर नीरजा, डिप्टी मेयर फातिमतुज़्ज़हरा, साबिका कुतुब खाना चेयरमैन अजीजुल हक, खम्मम नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद शौकत अली, खम्मम जिले बीआरएस पार्टी अक़लियती सदर ताजुद्दीन के अलावा बीआरएस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जिले निजामाबाद के बोधन हल्के के शक्कर नगर में वाक़े एनएसएफ ग्राउंड में बोधन के रुकन असेंबली शकील आमिर ने जलसे आम मुनक्कद किया, जिसमें बोधन की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने जलसे आम में शिरकत की और खिताब किया। कविता ने आवाम से भारी अक्सरियत से एक बार फिर शकील आमिर को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बोधन की तरक्की और बीआरएस की फलाही स्कीमात से मुस्तफिद होने और तेलंगाना में अमन व अमान कायम रखने के लिए बीआरएस पार्टी के निशान कार को वोट दें और बोधन से शकील आमिर को कामयाब बनाएं। इस मौके पर बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈ 10 सालों में 21 స్కూల్స్ యాడ్ करे हम उसको రెండింటి నుంచి 21 పాఠశాలలు యాడ్ చేస్తే బీసీలకు 23 పాఠశాలలు ఉన్నాయి కదా అంటే అసలు ఏమైనా పోలిక పొంతన ఉన్నదానే పోలిక లేదు పొంతన లేదు కానీ కామెడీ ఏంటంటే ఎలక్షన్ రాగానే అందరికి రకరకాల జబ్బులు వస్తాయి కేసీఆర్ సార్ అంటే ముఖ్యమంత్రి ఆయనకు రకరకాల వ్యూహాలు ఉంటాయి ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడు జాతీయ స్థాయి నాయకుడు ఆయన రెండు దగ్గరలో పోటీ చేస్తాడు ఆయనకి ఏదో వ్యూహం ఉంటుంది ఇక పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టు ఒక పక్క రేటెంత రెడ్డి ఆయన నేను రెండు దగ్గరలో పోటీ చేస్తా కేసీఆర్ పోటీ చేస్తే అంటూ ఈటల రాజేంద్ర ఉన్న నేను కూడా రెండు దగ్గరలో పోటీ చేస్తా అంటూ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకుంటే వాతలు గ్యారంటీ మిగులుతాయి రిజల్ట్ అయితే ఏముంటది అవునా కదా మిగిలేవి లాస్ట్ కు వాతలే తప్ప ఏవి ఉండవు కాబట్టి మరి వాళ్ళు 3 దగ్గరలో పోటీ చేసుకొని 2 దగ్గరలో పోటీ చేసుకొని వాళ్ళు ఏమి చేసినా అల్టిమేట్ గా గెలిచేది మాత్రం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎందుకు ఇంత బలంగా ఎక్కువ ఉందంటే మా షకీల్ అన్నని చూడండి కరోనా వచ్చినా బోధనలోనే ఉంటాడు కష్టం వచ్చినా బోధనలోనే ఉంటాడు దసరా పండుగ అయినా బోధనలో ఉంటాడు దీపావళి అయినా బోధనే ఉంటాడు రంజాన్ అయినా బోధనలో ఉంటాడు క్రిస్మస్ అయినా బోధనలో ఉంటాడు కానీ మొన్న ఎన్నికలలో ఓడిపోయిన తర్వాత సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మళ్ళా ఎన్నిక వస్తే గానీ బోధనకి రాడు ఆయన అవునా కదా బోధనంతా ఒప్పుకుంటుందా లేదా మరి ఈ ఎన్నికలప్పుడు వచ్చిపోయే ఎలక్షన్ రెడ్డిలు ఎన్నికలప్పుడు వచ్చిపోయే ఎలక్షన్ గాంధీ ये मंतख करते हुए कि ताजमहल दरअसल राजा सिंगमान ने तामीर करवाया था, जबकि मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने उसकी सिर्फ मरम्मत करवाई थी। एक शख्स अदालत से रुजू हुआ। इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट में मुफाद आमा की एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए यह इस्तदा की गई है कि अदालत हुकूमत हिंद को हिदायत जारी करे कि वो ताजमहल से मुतालिक तारीख़ी हक़ाइक़ को दुरुस्त करके दोबारा तारीख़ी किताबें शाया करे। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मुफाद आमा की ये दरख्वास्त एक सख्त गिर हिंदू तंजीम हिंदू सेना के सदर सुरजीत सिंह यादव की तरफ से दायर की गई थी। दरख्वास्त में दावा किया था कि ताजमहल असल में राजा मान सिंह का महल था, जिसकी बाद में मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने महज मरम्मत करवाई थी और ये मुग़लों की तामीर नहीं है।
कोलकाता के एडन गार्डन में खेले गए वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन से शिकस्त देकर लगातार 8वीं जीत दर्ज कराई। इस मैच में टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका की टीम को 327 रनों का हदफ दिया था। इसके जवाब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 27.1 ओवर में महज 83 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। अफ्रीका की टीम का कोई भी बल्लेबाज 20 रन नहीं बना पाया, जबकि टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। गुज़िश्ता मैचेस की तरह कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को अच्छा आगाज फराहम किया और उन्होंने 24 गेंदों पर 40 रन बनाए। टीम इंडिया की पहली विकेट 62, जबकि दूसरी विकेट 10.3 ओवर्स में 93 रन पर गिरी है। रोहित शर्मा और शुभम गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली और सुरेश अय्यर ने शानदार पार्टनरशिप बनाकर बड़े टोटल की बुनियाद रखी। विराट कोहली ने 121 गेंदों पर 101 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर करियर की 49वीं सेंचुरी मुकम्मल की, जबकि शेरियार अय्यर 77 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया की जानिब से दीगर खिलाड़ियों में रोहित शर्मा ने 40, शुभम गिल ने 23, सूर्या कुमार यादव ने 22, जबकि रविंद्र जडेजा ने 29 रन की इनिंग्स खेली। हिंदुस्तान में जारी अमृत कॉल और अच्छे दिन से फरार होते हुए अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वाले 97,000 हिंदुस्तानियों को अमेरिकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हिरासत में ले लिया। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दरमियान अमेरिकी सरहदों पर हिरासत में लिए गए हिंदुस्तानियों के सिलसिले में जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 96,917 हिंदुस्तानियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस के दौरान ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जिनमें 30,010 ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो कि कनाडा की सरहद से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिए गए हैं, जबकि 41,770 हिंदुस्तानियों को मैक्सिको सरहद से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तिल अबीब में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने वालों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोक दिया। ये यरगमालियों के रिश्तेदार बताए गए हैं। ये एहतजाजी मुजाहरा गुज़िश्ता माह हमास के मज़ाहमतकारों के मुसल्लह कारकुनों के गजा की पट्टी के गिर्द व नुहा बसने वाली यहूदी कम्युनिटीज़ पर हमला रोकने में नाकामी के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार है। अल अरबिया.नेट के मुताबिक नेतन्याहू की यरूशलेम में वाक़ क़यामगाह के बाहर लगाई गई रुकावटें हटाते हुए एहतजाज के लिए जमा होने वाले सैकड़ों एहतजाजियों ने हाथों में इसराइली परचम उठाए रखे थे और वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के नारे लगा रहे थे। एहतजाज का यह सिलसिला उस वक्त सामने आया है जब अवामी राय आमा के एक सर्वे में 3/4 इसराइलियों ने इसराइली वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। राय आमा का यह सर्वे अपनी सियासी और सिक्योरिटी क़यादत की पॉलिसियों के खिलाफ उनके गमो गुस्से का इजहार है। वाज़ेह है कि इसराइल में जंग बंदी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।